Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to your third experiment for your DST lab, and its title is Combinational Logic Design using Verilog HDL. And in this particular experiment, you will be considering 4-bit full adder and encoder design and decoder design. As explained earlier, that there were some problems while you were designing the 4-bit full adder, so I am going to repeat that session today in this experiment. This is the most crucial experiment that you will perform up till now, so I hope that this will clear a lot of ambiguities that you have been facing while understanding these Verilog designs. So let's start. The lab objectives have been mentioned here. Also, another objective I have mentioned here is to verify the digital design by performing functional simulations and implement them on Xilinx and FPGA Spartan 3 eKit. These Spartan FPGA 3 eKits are available in your lab, so I suggest that after you complete the lab tasks that I provide in this experiment, you will have to bring those codes in your lab and then perform the remaining tasks, or that is the evaluation of those Verilog codes on your Spartan 3 eKit, right? So for to go through the design of a 4-bit full adder, you need to first understand what is a full adder. I have described the designs of the full adder here. First is a black box approach in which the inputs and the outputs ports are mentioned. The input ports are A, B and carry in, and the output ports are sum and carry out, right? And I have also presented the circuit diagram or the basic building block of a full adder here, in which I have two XOR gates, and also I have two AND gates and one OR gate involved in the carry out thing, right? And similarly, I have presented another full adder circuit here, in which there is a 3-input XOR gate representing the XOR operation between 3 inputs X, Y and C in, or you can also call them A, B and C in, just like here. And we get two outputs, S and C out. S is the sum and C out is the carry out, right? And to represent this full adder, there are different various approaches. You can also use the structural approach, in which the modules of two half adders are interlinked to each other in this way, and then we get the sum and the output. This is also another design of a full adder, and this is the truth table of a full adder that you have already studied, and I will come to these lab tasks later. Let's move on to the design of how to actually compute the design of a 4-bit full adder from the design of its building block, that is a full adder. We already know that a full bit full adder is actually something like this. It has 3 inputs A, B and C in, carry in, and it has 2 outputs, sum and carry out. Now if we are trying to make a 4-bit full adder, what does this mean? That we are actually utilizing 4 building blocks of these full adders in this, just like here. 1, 2, 3, 4. Full adder and full adder. This is 1, 2, 3, 4.
और हर फुल एडर के अंदर कितनी इनपुट्स मैंने मेंशन की थी, 3 इनपुट्स, 3 इनपुट्स, 3 इनपुट्स, 3 इनपुट्स। और हर फुल एडर की आउटपुट्स कितनी है, 2 आउटपुट्स, 2 आउटपुट्स, 2 आउटपुट्स एंड 2 आउटपुट्स, राइट। सो लेट्स फाइंड आउट दैट जो हमारे पास ओरिजिनल सर्किट था फुल एडर का, दिस वन, इस फुल एडर के सर्किट के अकॉर्डिंग हम किस तरह से इंटरलिंक करेंगे इस सम आउट और कैरी आउट को विद द नेक्स्ट फुल एडर बिल्डिंग ब्लॉक और यूनिट। तो हम इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं दैट हमारे पास ए और बी ये बोथ 4 बिट्स के हैं, राइट। सिमिलरली हमारे पास जो सम है दैट इज 4 बिट। कैरी को हम 4 बिट इसलिए नहीं मेंशन कर रहे बिकॉज उसकी अभी आपको लॉजिक समझ आ जाएगी। इसके अंदर B0 A0, B1 A1, B2 A2 एंड B3 A3, राइट। और इनपुट्स जो हैं कैरी इन से स्टार्ट हो रही है बट समहाउ हमारे पास आउटपुट आ रही है सम 0, सम 0, 1, सम 2 एंड सम 3। बट ये जो आउटपुट आपकी आ रही है कैरी आउट, ये नेक्स्ट की कैरी इन बन रही है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो कैरी आउट आ रहा है ये नेक्स्ट की कैरी इन बन रही है और ये आपका है फाइनल कैरी आउट। तो दिस मीन्स दैट हमारे पास इस पूरे सर्किट के अंदर कैरी इन की एक ही बिट है और कैरी आउट की एक ही बिट है, और जो बाकी सारी कैरी इन की जो बिट्स हैं ये दे आर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट वेरिएबल्स बिकॉज ये इंटरमीडिएट आउटपुट्स हैं, ये फाइनल आउटपुट्स नहीं है। तो हम एज़ पर आवर वेरिलॉग कॉन्सेप्ट हम इसको रीनेम कर सकते हैं कि हमने ये चीज़ आपको ये हमने पहले ही इस्टेब्लिश कर लिया था इन आवर इनिशियल लैब दैट जितने भी इंटरमीडिएट वैल्यूज़ हैं या जितनी भी इंटरमीडिएट आउटपुट्स हैं उनको हम अलग वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। तो हम इनको अलग से नाम देना चाह रहे हैं। लेट्स से आई नेम दिस वेरिएबल एज C1, दिस वायर एज C2 and this wire as C3. So this means कि आपके पास कैरी इन की एक सिंगल बिट है और यहाँ पर जो कैरी आउट आ रही है दिस हैज़ बिकम द कैरी इन ऑफ द नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंट फुल एडर यूनिट। सो अगर n बिट फुल एडर होगा तो उसके अंदर भी कॉन्सेप्ट सिमिलर लेकर आप चलेंगे बट उसके अंदर थोड़ा सा चीज़ें फर्दर कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। तो अब हम चलते हैं इसके Xilinx टूल के ऊपर, हम इसका डिज़ाइन बनाने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स मेक अ न्यू प्रोजेक्ट। इसको हम लैब वर्क 3 कह लेते हैं एंड एवरीथिंग विल रिमेन द सेम। फॉर द टाइम बीइंग आप इसको स्पार्टन 3E कर लें because we will be needing this code to implement on Spartan 3E kit, right? और बाकी चीज़ों को for the time being आप ऐसे ही रहने दें। Okay. वेट सेकेंड, दोबारा हम इसको एक दफ़ा देख लें ताकि हमने कोई मिस्टेक ना की हो। लैब वर्क 3 HTL and I am going to choose family Spartan 3E. Rest all the things will remain the same. Now I am trying to create a new source and name it as full adder.
अब इसको मैंने एज आई सेड बिफोर दैट इसको इम्प्लीमेंट करने की डिफरेंट अप्रोचेस हैं. आइदर यू कैन यूटिलाइज स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट दैट आप पहले एक हाफ एडर का मॉड्यूल बनाएं और उस हाफ एडर मॉड्यूल को आप इनहेरिट कर लें इन योर फुल एडर एंड देन यू कंप्लीट योर फुल एडर. जब आपने वो यूनिट एक कंप्लीट कर लिया फुल एडर कैन आफ्टर दैट you are going to design your 4-bit full adder. तो हम अभी हम चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड रखते हैं. हम फुल एडर डायरेक्ट बनाते हैं, राइट, वेरिलॉग मॉड्यूल, एंड इसकी 2 आउटपुट्स हैं, सम एंड कैरी आउट. these both are outputs and inputs क्या है A, B and carry in. Right. अभी हम since I already mentioned in your previous lab that you're supposed to utilize all three. In fact, I mentioned data flow modeling here, but I will describe that आपको अगर data flow structural या अगर आपने बिहेवियरल मॉडल के साथ आपने मॉडलिंग के साथ आपने अगर फुल एडर को डिज़ाइन करना है तो उसकी क्या मेथड्स हो सकते हैं. तो सबसे पहले हम डेटा फ्लो को लेकर ही चलते हैं. तो उसके अंदर हमारे पास आउटपुट है. फर्स्ट आउटपुट क्या है, असाइन. फर्स्ट लेट मी डिफाइन द इंटरमीडिएट आउटपुट्स C1, C2 एंड C3. राइट, यही इस जो डिज़ाइन जो हमने यहाँ पर बनाया इसी को हम सामने रखते हैं, राइट. एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो हम असाइन का एक कीवर्ड यूज़ करते हैं एंड आफ्टर दैट हम फर्स्ट आउटपुट जो है सम, उसके अंदर हम क्या असाइन करना चाह रहे हैं. इक्वेशंस भी यहाँ पर मेंशन करनी ज़रूरी हैं. तो लेट्स सी दैट हमारी फुल एडर की इक्वेशन क्या है. फुल एडर की इक्वेशन है सम इक्वल्स A XOR B XOR C and carry C out is equal to AB plus AC plus BC. राइट, एक ये अप्रोच भी है. सिमिलरली एक और अप्रोच भी है दैट आप B XOR C और इसको एंड कर लें आई थिंक A के साथ, और इन दोनों में से किसी एक की पर आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट इक्वेशन. इफ़ यू डू रिमेंबर देन आइदर आप इसको ट्रुथ टेबल से डिराइव कर लें या अगर आपको ज़बानी याद है तो आप उसको ज़बानी यूज़ कर लें. दैट एक इक्वेशन ये है. आई थिंक यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट भी है. एंड आफ्टर दैट आपने इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करना है या इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करना. आई रिमेंबर बोथ ऑफ दीज, तो मैं इन्हीं दोनों को इम्प्लीमेंट करूँगी. आप अपनी मर्ज़ी से उसको चेंज भी कर सकते हैं. इट्स अप टू यू. तो मैंने इनपुट है मेरे पास A और सिंबल है XOR का दिस वन, A XOR B XOR C एंड असाइन C out, नॉट C की बजाय हमारे पास कैरी इन है थर्ड इनपुट का नाम. एंड C out के अंदर है A एंड B और A एंड C और B एंड C. राइट, तो ये हमने अपना फुल एडर डिज़ाइन कर लिया. राइट, तो
अभी फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी आर नॉट येट डिज़ाइनिंग द 4-bit फुल एडर. अभी हमने सिर्फ एक सिंगल फुल एडर डिज़ाइन किया है. तो इसको हम अगर सिंथेसाइज करें, व्हाट डज इट शो? सो देयर इज सम एरर इन इट. यस, एरर इस वजह से है बिकॉज सी जो है वो डिक्लेयर्ड नहीं है. मुझे यहाँ पे सी इन मेंशन करना चाहिए था. सो मुझे यहाँ पे भी सी इन मेंशन करना चाहिए था. नाउ आई एम गोइंग टू सिंथेसाइज इट अगेन. एंड आई थिंक दिस टाइम इसमें कोई एरर नहीं आ रहा. It's going to complete. राइट. तो अब हम टेस्ट बेंच इसका बनाते हैं. tb underscore full adder. राइट. फुल एडर के साथ ही हम इसको लिंक करना चाह रहे हैं. एंड लेट्स फिनिश इट. और टेस्ट बेंच जो है इसका कुछ इस तरह से बना रहा है. दैट उसने इनपुट सब को रेज के तौर पर यूटिलाइज़ किया, डिफ़ाइन किया है, डिक्लेयर किया आई मीन. और ये इसलिए करता है बिकॉज इनपुट्स के अंदर इस दफ़ा रन टाइम के अंदर चेंजेस आ रही हैं और आउटपुट्स के अंदर रन टाइम में चेंजेस नहीं आ रही. इनपुट्स हर दफ़ा नया स्टिमुलस हर लूप के अंदर या हर एग्जीक्यूशन में नया सेट ऑफ इनपुट जो है वो जनरेट कर रहा है. तो हमारे पास ये इस तरह से है. तो हम इसको तो लेट्स सी कि ये कहाँ तक इसकी कॉम्बिनेशन जा रहे हैं. 0 0 1 0 1 0 0 1 1 and 1 0 0 1 0 1. Still I need two more to complete. 1 1 0 and 1 1 1. और उसके बाद I finish it. Right? So let's go to the simulation and check the syntax. And then I simulate it. I think it's going to open a new window to show me the timing waveform of this full adder. सो इसने अब अपना टाइमिंग वेवफॉर्म कंप्लीट कर लिया. सो लेट्स ऑब्जर्व इट. तो इसके अंदर हमारे पास दीज टू आर आउटपुट्स, कैरी आउट एंड सम. तो किसी रैंडमली किसी एक लोकेशन पर हम चेक कर लेते हैं. व्हेन वी हैव इनपुट्स ए बी एंड सी एज 1 0 0. सो दिस मीन्स दैट आपके पास सम में 1 आना चाहिए बट समहाउ कैरी के अंदर आउटपुट 0 आना चाहिए. राइट?
तो ऐसा ही हो रहा है, यस एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। टॉप वन जो है दिस इज़ द सम एंड दिस इज़ द कैरी, कैरी में ज़ीरो आ रहा है। और सिर्फ लास्ट केस ऐसा होगा जब सम और कैरी बोथ वन आ रहे हैं, अदरवाइज़ बाकी सब केसेस के अंदर कहीं पर या कैरी ज़ीरो होगा या कैरी या सम वन होगा। तो यहाँ पर जिस तरह अब यहाँ पर आई हैव 1 1 0 कॉम्बिनेशन, तो इसके अंदर सम ज़ीरो होना चाहिए और कैरी को वन होना चाहिए। सो दिस इज़ एग्जैक्टली द करेक्ट लॉजिक। तो अब नेक्स्ट हम उस देख लेते हैं कि लेट्स सपोज अगर इफ़ आई आस्क यू दैट इसको आपने यूजिंग स्ट्रक्चरल मॉडलिंग आपने इसको शो करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आई एम गोइंग टू हाइड दिस एंड लेट्स ट्राई इट अगेन। तो स्ट्रक्चरल मॉडलिंग के अंदर सबसे पहले क्या हो रहा है, XOR और G1 नाम रख लेते हैं इसका। और इस ऑपरेशन के अंदर क्या हो रहा है, A B और आउटपुट आ रही है समहाउ, हमें अब इंटरमीडिएट वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी, वायर T1 एंड T2 यूज़ कर लेते हैं। तो फर्स्ट आउटपुट आ रही है T1, फिर हम एक और XOR यूज़ कर रहे हैं G2। इसके अंदर सबसे पहले आपको आउटपुट मेंशन करनी थी, आई फॉरगॉट अबाउट दिस, एंड आफ्टर दैट इनपुट्स। यहाँ पर आउटपुट है सी आउट एंड इनपुट्स होनी चाहिए T1 एंड सी इन, राइट। ये आपका जो मैंने यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी थी दिस वन, इस इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ मैंने 2 इनपुट XOR गेट्स मेंशन किया है, राइट। और सिमिलरली हमारे पास अब सेकंड असाइनमेंट थी, सेकंड जो इक्वेशन आ रही थी वो दिस वन आ रही थी, सी आउट। तो इसके लिए क्या आप यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले आप एंड यूज़ करेंगे जिसके अंदर आपको वायर्स अब फर्दर भी यूज़ करनी पड़ेगी, T3 T4 एंड T5 भी कर लेते हैं और जस्ट इन केस। तो ये हमारे पास G3 का नाम हमने रखा है और एंड गेट के अंदर फर्स्ट जो है एक इंटरमीडिएट आउटपुट आ रही होगी जिसका नाम हमने T3 कर लिया और उसकी इनपुट्स हैं A और B, T3 A एंड B, राइट। और सिमिलरली एंड G4 और इसकी आउटपुट T4 होगी, क्योंकि ये भी अभी फाइनल आउटपुट नहीं है। फाइनल आउटपुट हमारी तब आएगी जब तीनों की तीनों एंड ऑपरेशंस हो चुके होंगे। और इसकी इनपुट हो जाएगी T3 और सेकेंड इनपुट क्या होगी, C इन, दिस वन। नॉट T3, A एंड C इन होगी, राइट। आफ्टर दैट एक और एंड गेट हम ले रहे हैं G5, उसका नाम रख रहे हैं एंड इट शुड बी T5 और इसके अंदर B और C इन का एंड हो रहा है, B और C इन का एंड हो रहा है। और अब मुझे इन चारों, ये जो तीन मेरे पास आउटपुट्स आई हैं T3 T4 और T5, इन सब का मुझे और करना है अकॉर्डिंग टू दिस सिंबल। और G6 और इसके अंदर फर्स्ट है आउटपुट, एक और हमें वेरिएबल इंटरमीडिएट लेना पड़ेगा क्योंकि और भी दिस टाइम 2 इनपुट और है। तो T6 इसकी आउटपुट है इंटरमीडिएट और इनपुट्स में पहले हम T3 और T4 को ले लेते हैं, राइट। एंड आफ्टर दैट हम एक और ले रहे हैं जिसका नाम हमने G7 रख दिया एंड आफ्टर दैट हमारी फाइनल आउटपुट आ रही है विच इज़ सी आउट, क्योंकि अब हम ये दोनों ऑपरेशन इन दोनों का और जो है वो एक ही टाइम पे कर लेंगे। सो दिस विल बी सी आउट and inputs are going to be T5 and T6, T5 and T6,
राइट। अब हम इसको सेव करते हैं और अब हम इसको सिंथेसाइज करते हैं दोबारा। एंड आई एम गोइंग टू यूटिलाइज द सेम टेस्ट बेंच टू टेस्ट दिस एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट दैट इसकी लॉजिक ठीक बनी है या गलत बनी है। सो देयर आर सम एरर्स। एरर क्या है? ओके, ये एरर थोड़ा सा टेक्निकल है, दोबारा देखते हैं इसका। This signal is connected to multiple drivers. So let's try to view its RTL schematic. ओके, यहाँ पर कुछ एक गड़बड़ हुई है, बिकॉज दिस इज़ नॉट सी आउट, दिस शुड बी सम, बिकॉज हमारे पास आउटपुट थी सी आउट नहीं थी, दिस वॉज सपोज टू बी सम। सो नाउ इसके अंदर कोई एरर नहीं आएगा। राइट, तो अब ये कंप्लीट हो गया है, तो इसको हम टेस्ट बेंच इसके ऊपर रन करके देखते हैं। टेस्ट बेंच, दिस इज़ द टेस्ट बेंच सेम है, उसको हम चेंज नहीं कर रहे। एंड आई एम गोइंग टू रन दिस सिंटैक्स चेक एंड आफ्टर दैट हम इसको सिमुलेट करते हैं। सिमुलेट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारी लॉजिक ठीक बनी थी या इसमें कोई मिस्टेक थी। Right, so now it's going to open my timing waveform. ठीक हो गया, लेट्स व्यू इट कंप्लीट। और इसके अंदर हम रैंडमली एग्जैक्टली लास्ट तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है, रैंडमली दरमियान में भी कहीं देख लेते हैं। सम व्हेन आई हैव 101 इनपुट पे, तो सम 0 और कैरी 1, एग्जैक्टली दिस शुड बी द केस। तो अब अगर मैं आपको कहूँ कि इफ़ यू आर सपोज टू write down this code in the form of behavioral logic, then आप I suppose that you can write it on your own. then फ़िलहाल हम इसको comment कर लेते हैं सबको, और हम जो हमारा original objective था, that is
द डेटा फ्लो मॉडलिंग, उसी को हम यूज़ करते हैं, राइट। एंड इसको हम दोबारा एक दफ़ा सिंथेसाइज कर लेते हैं। एंड उस इन द मीन वाइल जब तक ये रन होता है हम एक और सोर्स जनरेट कर लेते हैं और उसको हम ओके इट्स न्यू सोर्स को ये जनरेट करने का भी टाइम नहीं, मौका नहीं दे रहा। तो लेट्स रन इट। इन वायर्स की ज़रूरत नहीं थी because we are not using these wires. अगर ये एरर देता है तो नेक्स्ट टाइम एरर नहीं देगा ये। राइट, एरर इसने नहीं दिया। सो इट डजेंट मैटर कि अगर हमने कोई इररेलेवेंट वैल्यूज़ डिक्लेयर कर दी हैं। सो अब हम एक और वेरिलॉग मॉड्यूल क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर हम 4 बिट एडर बनाना चाह रहे हैं, राइट। और इस 4 बिट एडर के अंदर आउटपुट्स तो सेम है, सम, सी आउट, ए, बी एंड सी इन। मतलब जो आपकी पोर्ट्स हैं वो तो सिमिलर हैं, बट हाउएवर दिस टाइम द प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि हम सम को 4 बिट मेंशन कर रहे हैं, 3 एंड 0, और सी आउट को तो सिंगल बिट ही रखेंगे। ए और बी ये भी 4 बिट है। राइट, और बाकी सी आउट टू सी इन जो है ये 1 बिट ही रहेंगे क्योंकि ये आपको उसकी लॉजिक ऑलरेडी पता है। अब हम ये 4 बिट एडर बना रहे हैं। तो इसके अंदर इसने मुझे एक मॉड्यूल क्रिएट करके दिया, इसके अंदर आउटपुट्स और इनपुट पोर्ट्स जो हैं उसने 4 बिट्स की जो रेलेवेंट हैं वो उसने डिक्लेयर करके मुझे दे दी है। नेक्स्ट टाइम अब मुझे क्या लॉजिक बनानी है कि ये जो मैंने यहाँ पर सर्किट बनाया था, दिस वन हियर, इस सर्किट को मुझे कंप्लीट करना है। उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं पहले फुल एडर को इनहेरिट कर लेती हूँ, फुल एडर, और इसका नाम मैं फुल एडर 1 रख लेते हैं। और इसके अंदर इनपुट्स हम क्या क्या ले रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पर 4 यूनिट्स हैं तो ये 4 टाइम इनहेरिट होगा, राइट। और इसके अंदर इनपुट्स क्या हैं, ए, सॉरी सबसे पहले हम आउटपुट मेंशन करेंगे। आउटपुट है सम 0 एंड कैरी। अब इशू ये है कि इस वक्त हमें कैरी आउट नहीं मिल रहा, बिकॉज़ फर्स्ट टाइम हमें मिल रहा है कैरी आउट की जगह हमें C1 मिल रहा है। ये हम फुल एडर 1 की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमें सम 0 तो मिल रहा है आउटपुट पे, बट कैरी आउट हमें यहाँ पर जाके फुल एडर 4 के बाद कहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर फुल एडर 1 की आउटपुट पे कैरी C1 है, और सिमिलरली हमारे पास इनपुट्स पे तो CN ही है, बट कैरी आउट की जगह C1 आ रहा है, राइट। तो हम इसको C1 कर लेते हैं, बट इसको सबसे पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा वायर C1। सिमिलरली हम आगे जाते हैं जिसके अंदर इनपुट्स हम मेंशन कर रहे हैं A0 एंड B0 एंड CIN एज इट इज़ हम लिख देंगे, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट, अगेन हम इसको इनहेरिट कर रहे हैं फुल एडर 2, और इसके अंदर सम 1 है आउटपुट, और इसकी आउटपुट क्या है, इसकी आउटपुट यहाँ से देखते हैं दोबारा। इसकी आउटपुट है C2, राइट। तो हमें इस C2 को यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट आई एम मेंशनिंग द आउटपुट C2 एंड इनपुट्स क्या है A1, B1 एंड इनपुट। अब CIN की जगह क्या आ रहा है यहाँ पर, CIN की जगह C1 आ रहा है, so let's write it there, and then again full adder
थर्ड टाइम हम इसको इनहेरिट कर रहे हैं, देन आई विल गेट सम 2 C3 A1 sorry 2 AB2 एंड C2। तो ये C3 को भी हमें यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा C3। अब हम आते हैं लास्ट वाले के ऊपर। लास्ट टाइम अब हमने जब इनहेरिट कर लिया 4, तो इसके अंदर सारा कुछ नॉर्मल होगा एक्सेप्ट दैट अब हमारे पास सी आउट जो है दैट इज़ इन इट्स एक्चुअल फॉर्म। यही हमारी सी आउट है, यही हमारी इस फिगर के अकॉर्डिंग हमारी सी आउट जो है इसकी दैट इज़ नेम्ड एज सी आउट, राइट। एंड A3 B3 एंड इनपुट पे आ जाएगा C3, राइट। अब ये कर क्या रहा है कि इसने फुल एडर जो आपने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया, ऑलरेडी बना लिया, उसको इनहेरिट करके उसने उसकी मॉड्यूल्स इनहेरिट करने के बाद उसने जो रेलेवेंट वैल्यूज़ हैं वो उसने अंदर ट्रांसमिट कर दी हैं या उसके साथ अटैच कर दी हैं। सो अब वो आपका जो फुल एडर वाला जो था वो उसने इसके अंडर 4 मॉड्यूल्स की फॉर्म में उसकी सब क्लासेस या सब ये इसकी बेस क्लास समझ लें बन गई है और ये इसकी सब क्लासेस बन गई हैं, राइट। तो अब हमने इसको ये ऑलरेडी एज अ टॉप मॉड्यूल है तो इसको अब हम डायरेक्टली सिंथेसाइज करते हैं। यस और टेस्ट बेंच के अंदर इसका असल जो इशू आएगा वो टेस्ट बेंच में ही आएगा, बिकॉज़ जो कन्वेंशनल टेस्ट बेंचेस बनते हैं वेरिलॉग के अंदर दे आर नॉट feasible टू टेस्ट दिस काइंड ऑफ डिज़ाइंस। उसको हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है, कस्टमाइज़ करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। किस तरह से करेंगे वो भी हम देखते हैं। अब यहाँ पर अब कोई इशू नहीं आया, सो लेट्स एक दफ़ा इसका RTL स्कीमेटिक देख लेते हैं। राइट, इसके अंदर एक फुल एडर है जिसके अंदर 3 बिट A है, 4 बिट A है, 4 बिट B है और 4 बिट सम है और बाकी सी इन और सी आउट जो है वो सिंगल बिट ही हैं। फर्दर अगर आप देखेंगे तो आपको ज़ाहिर है इसका गेट लेवल डिज़ाइन भी नज़र आ जाएगा, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट एट द मोमेंट। वी आर गोइंग टू द टेस्ट बेंच। तो हम इसी के साथ न्यू सोर्स क्रिएट करते हैं बिकॉज दिस टाइम हमारा जो टेस्ट बेंच है दैट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट देन दैट। TB_4 bit adder। नेक्स्ट राइट, हम इसी के साथ ही लिंक करना चाह रहे हैं, हम फुल एडर के साथ लिंक नहीं करना चाह रहे। फुल एडर के लिए हमने अलग से टेस्ट बेंच बनाया हुआ है। नाउ दिस इज़ द बाय डिफ़ॉल्ट टेस्ट बेंच जो कि इसने मुझे बना कर दिया है। बाकी सारी चीज़ें सिमिलर हैं, बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि इट इज़ कंसिडरिंग A, B, C in एज अ सिंगल बिट वेरिएबल, जबकि इन रियलिटी ऐसा नहीं है। तो हम इन इनपुट्स को इग्नोर करेंगे, इनको हम यूज़ नहीं कर रहे। इनकी जगह वी आर गोइंग टू रीडिफाइन द वैल्यूज़ ऑफ इनपुट्स। A 0 है, देन A 1 है। A 1 को अगर हम लेट सपोज इनिशियली ज़ीरो रखते हैं, A 1 को लेट सपोज ज़ीरो रखते हैं एंड A 3 को भी ज़ीरो रखते हैं एंड सॉरी ये 2 था एंड दिस वाज गोइंग टू बी A 3 इक्वल्स 0।
इनिशियली। सिमिलरली हम B0 को B0 रख रहे हैं फर्स्ट केस के अंदर, B1 को B0 रख लेते हैं एंड B2 को B1 0 रख लेते हैं। दिस इज़ द करेक्ट वे, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी टीडियस एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, बिकॉज हमारे पास आइडियली यहाँ पर हो क्या रहा है, दिस इज़ आइडियली द केस दैट वी हैव A3:0 यानी 4 बिट है, सिमिलरली B3:0 4 बिट है। सो दिस मीन्स कि हमारी इनपुट का साइज जो है दैट इज़ गोइंग टू बी 8 बिट्स, नॉट 8 बिट्स, इनफैक्ट साथ में Cin है तो ये 9 बिट्स बन रहे हैं। तो A के 4 बिट्स 0000, B की 4 बिट 0000 एंड Cin की 1 बिट, यानी इसको भी अगर हम 0 रखते हैं तो इन तीनों को इसने आपस में ऐड करना है। तो फिर हमारे पास रिजल्टेंट के अंदर एक 5 बिट वैल्यू आएगी जिसके अंदर सम की 4 बिट्स होंगी और 1 बिट होगी आपकी कैरी की, सी आउट की, राइट। तो अब इशू क्या आ रहा है कि आप कितनी वैल्यूज़ यहाँ पर करेंगे कि आपके पास A, B और C 2⁻9 कितना बनता है, दिस विल बिकम 512। सो दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक, यहाँ पर एक और वैल्यू होनी चाहिए Cin इक्वल्स 0। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास 512 डिफरेंट वैल्यूज़ होनी चाहिए टू रिप्रेजेंट ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ A, B's एंड Cin, राइट। तो अब इसको अवॉइड करने के लिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा, यानी फर्स्ट केस के अंदर हमने सब में 0 पुट किया, सेकंड केस के अंदर हम कहीं सब में किसी जगह 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, तो सब कॉम्बिनेशंस को हम चेक नहीं कर सकेंगे। सो इसका आसान सोल्यूशन क्या है? इसका आसान सोल्यूशन ये है दैट बेसिकली इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी दिस 000 इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम डेसिमल्स यूज़ कर लें, सो दिस विल वर्क बिकॉज 0000 इज इक्विवेलेंट टू 0 and similarly 1111 is equivalent to 15. ठीक है, सही हो गया। तो ये 1111 is going to represent 15। तो सिमिलरली अगर हम B को भी इसी केस के अंदर ऐड करेंगे तो हमारी जो इनपुट्स की मिनिमम वैल्यू है दैट इज़ 0000 एंड 0 एंड इट विल मूव ऑन टू अप टिल 1111 11111, तो ये 9 बिट्स बन जाते हैं। तो दिस इज़ इक्विवेलेंट टू, अगर ये इक्वल्स था 0 के, इफ़ दिस वाज इक्वल टू 0 then this is equal to 511, right। और दरमियान में कहीं पर अगर let's suppose 1111 1111 और यहाँ पर 0 है तो this will supposed to be 510। राइट। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं कि हम इसको डेसिमल की फॉर्म में ही लिख लेते हैं। किस तरह से? इसको मैं अगर कमेंट कर दूं एंड आई एम ट्राइंग टू राइट द आउटपुट्स लाइक दिस, A in curly brackets A, B and C out, C in,
हम कॉम्बिनेशन इनपुट्स के ले रहे हैं ना, आउटपुट्स के तो हम ले ही नहीं रहे कॉम्बिनेशंस. दिस इज इक्वल टू 1 और फिर आपने अप टिल ए बी सी इन इक्वल्स 511 लिखना है. तो अभी भी ये काफ़ी टीडियस प्रोसेस है. ये टीडियस प्रोसेस इसलिए है बिकॉज आप क्या कर रहे हैं कि 512 टाइम्स आप एक ही लाइन को लिख रहे हैं. दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी हेक्टिक प्रोसेस. इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अगर एक इंटीजर वैल्यू ले लें, इंटीजर जे ले लें और हम डेसिमल वैल्यू को इस जे से रिप्रेजेंट कर लें और उसके बाद हम एक फॉर लूप लगाएं यहाँ पर. फॉर j equals 0 and j is less than equals less than 512 and j is equal to j plus 1 और उसके बाद हम यहाँ पर j लिखें और यहाँ पर हमें फॉर लूप के बाद एक बिगिन का कीवर्ड भी मेंशन करना पड़ता है एंड आफ्टर दैट आई विल राइट डाउन एंड. और उसके बाद हर एग्जीक्यूशन के बाद 10 नैनो सेकेंड्स का गैप भी दे. राइट, ठीक हो गया. तो हमने डेसिमल वैल्यूज़ को तब तक रन करना है, यानी फर्स्ट लूप के अंदर ए बी और सी के अंदर जे इक्वल्स 1 ज़ीरो रखें, जे इक्वल्स 0 रखें और सेकंड के अंदर जे इक्वल्स 1 रखें. और 1 का मतलब क्या है कि आपके पास ए बी और सी की ऑल वैल्यूज़ शुड बी इक्वल टू 0, यानी आपकी जो ये 9 बिट्स बन रही है इनका इक्विवेलेंट आना चाहिए 0 के बराबर. सिमिलरली आपका जब सेकंड लूप चलेगा तब जे की वैल्यू 1 हो चुकी होगी. तो इन दैट केस आपके पास ए बी और सी का सबका जो तीनों का जो सम है दैट शुड बी विदिन दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू 2 डेसिमल 2. राइट. तो उसके बाद हर एग्जीक्यूशन के बाद वो 10 नैनो सेकेंड्स का गैप दे. तो अब हम इसको थोड़ा रन करने की कोशिश करते हैं. लेट्स ट्राई इट. syntax yes ओके इसको नहीं, मुझे इसको रन करना था, सॉरी. इसको भी अब हम चेक करते हैं. behavioral syntax ओके. यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं, इनको हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं. एंड लाइन नंबर 58 ओके. डिक्लेरेशंस यहाँ पर अलाउड नहीं है तो हम इसको इस इनिशियल ब्लॉक से पहले डिक्लेयर कर लेते हैं. ठीक है. Now again try to run the syntax. Okay. Due to previous errors. ठीक है. यहाँ पर आई थिंक सेमीकोलन भी आएगा. Let's try it. Right.
अब इसकी ये टाइमिंग वेव फॉर्म अब इसकी शो करेगा. लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व दैट. और फिर हमें पता चलेगा कि हमने ये जो 4 बिट फुल एडर डिज़ाइन किया है, इज़ इट गोइंग टू वर्क राइट और नॉट. थोड़ा सा हम इसको जूम इन करते हैं. अच्छा, इसके अंदर कुछ चीज़ें जिस तरह हमें जे की वेव फॉर्म नहीं देखनी, दिस इज़ इरेलेवेंट टू अस, तो हम इसको डिलीट कर लेते हैं. और आउटपुट्स जो हैं सम और सी आउट, ये बेसिकली 5 बिट आउटपुट बन रही है. तो इसको अगर हम इकट्ठा कर लें तो वी कैन ऑब्जर्व दैट न्यू वर्चुअल बस, इसको हम आउटपुट कह लेते हैं. राइट, सो लेट्स ट्राई. अभी अच्छा, अब इशू क्या हो रहा है कि ये 1000 नैनो सेकेंड्स के बाद अपनी सिमुलेशन स्टॉप कर रहा है. बट हाउएवर हम चाह रहे हैं कि ये फुल आउटपुट्स शो करे. तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 5.12 नैनो सेकेंड्स तक कर लेते हैं. एंड लेट्स री रन इट. तो अब ये मुझे सारी की सारी पॉसिबल आउटपुट्स शो कर रहा है. तो ये लास्ट केस है. लास्ट केस के अंदर जब हमारे पास कैरी इन और ए और बी, इन दोनों के अंदर 111 पड़ा है, तो आउटपुट के अंदर आपको सम में शो कर रहा है, यानी दिस विल बी इक्वल टू 11111. सो अब इसको चेक भी कर लेते हैं दैट अगर हम ऐड कर रहे हैं ए और बी को विथ सी इन, तो आउटपुट क्या आती है. ए के अंदर 1111 पड़ा है, 1111 पड़ा है और यहाँ पे 1 पड़ा है. तो आउटपुट क्या आती है, इट शुड बी 1. दिस शुड बी द आउटपुट. ये आपका सम आ रहा है अलॉन्ग विद कैरी आउट. तो कैरी आउट वाली बिट जो है वो भी 1 है और सम जो है उसके अंदर भी चारों में 1 पड़ा हुआ है. सो यहाँ पर भी एग्जैक्टली ऐसा ही है दिस वन, कि आपके पास जो आउटपुट वेव फॉर्म है इसके अंदर भी एग्जैक्टली 11115 बिट आ रहा है. ठीक है, तो अब हम कोई और वैल्यूज़ चेक कर लेते हैं रैंडमली. इसको हम इस कॉम्बिनेशन को हम देख लेते हैं. इसके अंदर है ए के अंदर 1000 पड़ा है और बी के अंदर 0101 पड़ा है और कैरी इन के अंदर भी 1 पड़ा हुआ है. तो उसको हम चेक कर लेते हैं. ए के अंदर है 1000 एंड बी के अंदर है 0101 और कैरी इन के अंदर भी 1 पड़ा हुआ है. तो अब हम देखते हैं इसके आउटपुट पे क्या आता है. यानी आपके पास सम में 0 आ जाएगा, कैरी में 1 आ जाएगा, 1 1 1. यानी आपके पास कैरी बिट शुड बी 0 एंड सम विल शुड बी 1110. तो लेट्स सी इट. आउटपुट पे आ रही है दिस वन. थोड़ा सा इसको फर्दर अगर हम जूम इन कर लें, शायद यहाँ पर हमने कोई गलती की है. ओके, एक चीज़ है, कैरी बिट जब 1 है, अगेन लेट मी चेक कि आपकी आउटपुट आ रही है 1100 एंड 11. राइट, तो यहाँ पर सम आपका यहाँ पर हो रहा है. समहाउ आप लेफ़्ट टू राइट स्टार्ट कर रहे हैं. 0, बट दिस शुड बी सिमिलर टू. एनीवेज, इसको मैं फर्दर देख कर फिर मैं आपको बताती हूँ. एक आध वैल्यू और चेक कर लेते हैं.
0 और आपकी कैरी बिट जो है दैट इज़ इक्वल टू 1। तो जब भी आपकी कैरी इन जो है दैट इज़ हाई, तो वो कैरी आउट को भी हाई ही कर रहा है, राइट। और बाकी somehow it's still not making any sense। तो इसका मतलब कि या इसका एक और मेथड भी ये हो सकता है दैट आपके पास बेसिकली यहाँ पर दिस इज़ इक्वल टू 8 and this is equal to 5 plus 1। तो 8 plus 5 plus 1 is equal to what? 13 and 14। तो 14 की बाइनरी क्या होगी? This is equal to 1 1 1 0 0। तो is it showing it that way? Exactly, I think यही आ रही थी। या यहाँ पर हम देख लेते हैं 0 0 1 1 and 0 1 0 0। तो this is equal to 3 plus 5। 3 plus 5 is equal to 7 8। Sorry, 3 plus 0 0 1 1 is equal to 3 and 0 1 0 0 is equal to 4। 3 plus 4 is equal to 7, right। तो यहाँ पर आउटपुट पे 7 शो हो रहा है। सो दिस इज़ एग्जैक्टली आवर फुल एडर। तो इसकी एडिशन किस तरह से होगी वो मैं आपको दोबारा देख कर बता दूंगी। सो लेट्स यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। फ़िलहाल के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है दैट आपकी फुल एडर जो है दैट इज़ एक्चुअली वर्किंग करेक्टली। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट टास्क के ऊपर। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ टास्क मेंशन की हैं। राइट, फर्स्ट टास्क ये है कि आपने एक जो फुल एडर बनाया 4 बिट फुल एडर, इसको यूजिंग स्ट्रक्चरल डेटा फ्लो एंड बिहेवियरल मॉडलिंग वेरीफाई भी करना है यूजिंग टेस्ट बेंच। डिज़ाइन तो आप लोग कर लेंगे, डिज़ाइन मैंने आपको कर भी दिया, सिर्फ बिहेवियरल मॉडलिंग रह गई जो कि आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू कैन डू ऑन योर ओन। एंड सेकेंड टास्क इज़ दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट अ 4 बिट फुल सबट्रैक्टर यूजिंग बिहेवियरल मॉडलिंग। स्ट्रक्चरल डेटा फ्लो की ज़रूरत नहीं है, राइट। एंड आफ्टर दैट यू मेक अ टेस्ट बेंच टू वेरीफाई इट्स फंक्शनैलिटी। ये आपकी लैब टास्क हो गई। एंड लैब असाइनमेंट यहाँ पर एक मेंशन की हुई है मैंने कि आपने 3 to 8 लाइन डिकोडर की स्ट्रक्चरल डेटा फ्लो एंड बिहेवियरल मॉडलिंग इन वेरीलॉग करनी है। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डिज़ाइन अ टेस्ट बेंच। बट यहाँ पर एक चेक है दैट यू हैव टू डिज़ाइन अ 3 to 8 लाइन डिकोडर by using the 2 to 4 line decoders, right। so you have to make this, keep this in mind। आप सबसे पहले डिकोडर का सर्किट बनाएंगे और सर्किट बनाने के बाद आप उन मॉड्यूल्स को डिज़ाइन करेंगे, राइट। एंड आफ्टर दैट है आपके पास सेकंड क्वेश्चन जो है इसी असाइनमेंट का, वो ये है कि आपने एक ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर सर्किट जो है वो बनाना है और उसके बाद आपने एक टेस्ट बेंच बनाना है उसका और उसको आपने वेरीफाई करना है। तो आपकी जो नेक्स्ट लैब है उसका एजेंडा मैं आपको पहले ही बता दूं दैट नेक्स्ट लैब में आप इस असाइनमेंट का कोड लेकर आएंगे। सिमिलरली आप ये जो आपकी लैब टास्क मेंशन है इनका भी आप कोड लेकर आएंगे एंड उन कोड्स को आपने वेरीफाई करना है ऑन योर FPGA किट्स, राइट। दिस इज सपोज टू बी द एजेंडा फॉर योर लैब 4। आफ्टर दैट हम अपना कॉम्बिनेशनल सर्किट के टॉपिक को क्लोज करेंगे एंड वी विल मूव ऑन टू द सीक्वेंशियल सर्किट, राइट। सो दिस इज फॉर टुडे। I hope I will see you in the next lab. Allah Hafiz.